So currently in our reading sessions in the morning, सुबह में जो रीडिंग सेशन हम बच्चों के साथ नहीं सभी के साथ कर रहे हैं, बट बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड है. सुबह 6:30 बजे हम जो कर रहे हैं, वी आर रीडिंग करंटली श्री ईशोपनिषद, एंड व्हाट अ वंडरफुल सेशंस दे आर गोइंग सुबह. So we are on mantra number 12 in Ishopanishad. This morning we had around 15 families joining in, 6:25 sharp, which is great. All right, let us do Bhagavad Gita. We are currently on chapter number 2, and last time I think Hanuman Prabhuji did till 49 if I am not mistaken. Okay, bhai? Should I do a, I don't know, इस घर के इंटरनेट का कुछ हो गया क्या? I'll just do a hotspot from my phone. Great, hotspot works. No, internet Wi-Fi also works, that's alright. So we are on chapter number 2 currently, contents of Gita summarized. I'll also speak in Hindi sometimes because I know there are various elderly parents. It is actually very tricky to speak in 2 different languages because your train of thoughts is different. That is why many Maharajas when they come or any speaker generally will ask, पहले ही पूछता है हिंदी में बात करने की इंग्लिश में, एक ही लैंग्वेज पकड़ के बात करते हैं. मेरे इसमें हम दोनों में बात कर रहे हैं. ऑल राइट, हम 50th श्लोका से 49 तक किया था ना लास्ट टाइम, है ना? 50 से चालू करते हैं. गुड, थैंक यू माता जी फॉर कमिंग इन विद द बुक्स एंड नोट्स. Namita, how did your exam go? I forgot to. I should not be asking in front of everybody this way, but I will speak with you. You passed, very nice. So Namita is giving book. Namita and Harsh and Gaurav and Mahesh Prabhu, या 4 लोग भगवद गीता के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं. फर्स्ट 6 चैप्टर का उनका एग्ज़ाम रिसेंटली हुआ है और सभी लोग पास हुए ऐसा मुझे बताया जा रहा है. बहुत बढ़िया, हरि बोल, हरे कृष्णा. यस, इट इज़ अ गुड थिंग. सो एक्चुअली आप ही ने देना चाहिए था लेक्चर तो अभी. 2.50. ऑल राइट, लेट अस रिसाइट मंत्र को. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. रीडिंग फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 50. बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे शुक्ता दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्वस्व. योग कर्मसु कौशलम्. बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृता दुष्कृते. उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व. योग कर्मसु कौशलम्. We need somebody to read the translation. Namita, can I get you to read the translation? So, yes. Translation, yes. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. So currently, thank you.
काम करती वाचन. So Arjun at this stage is not ready to fight. He does not wish to fight because he wants to avoid all the sinful reactions that will be coming. I missed out on your name, sorry. Yes. Yuvraj. Yuvraj, very nice. Yuvraj, may I know your age? What? Sorry? Uh, 15. 15, okay. Because I was wondering, there is a teenagers class, Yuvraj, that is going in. Feel free to join that class, or you can also continue to sit, whatever you are comfortable in. But the teenagers class goes on at a different level. Arjun doesn't want to fight anymore because he is worried about the sinful reactions and subsequent misery. But what is Krishna saying to Arjun? Krishna is saying to Arjun that Krishna is explaining that acting in devotional service will free him from all the sins and will lead him to a place beyond misery. Okay. So acting in devotional service for Arjun means fighting. तो अर्जुन अभी मना कर रहे फाइटिंग करने से. उनको लगता है कि मैंने अगर युद्ध में मैंने अगर मारा किसी को तो मुझे पाप लगेगा और मुझे फिर यातनाएं होंगी, मुझे नरक में जाना पड़ेगा. ओके. बट कृष्ण यहाँ पे बोल रहे अर्जुन को कि अर्जुन आपने अपना कर्तव्य करना है. अगर आप अपना कर्तव्य करते हो तो आपको नरक और किसी की यातना कोई भी भुगतनी नहीं पड़ेगी. तो कर्तव्य मतलब क्या? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अर्जुन? अर्जुन इज अ क्षत्रिय, तो उनका ड्यूटी है फाइट करना. ऐसे. सो एंड सो दैट इज व्हाई इट सेज Srila Prabhupada explains here, therefore strive for yoga which is the art of all work. What does this mean? Srila Prabhupada is promoting your buddhi yoga. What is बुद्धि? एक तो एक कर्म योगा है, सकाम कर्म योगा है, निष्काम कर्म योगा है, बुद्धि. अब ये बुद्धि योगा पे आ गया. तो बुद्धि योगा. डिवोशनल सर्विस को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिवोशन इज भक्ति, बट सर्विस को हाँ भक्ति में सेवा. So now from here on Prabhupada is going to talk more about buddhi yoga. I mean is in his purports is and even Krishna is doing the same. Strive for yoga which is the art of all of work. काम करने की एक कला होती है. हाँ, everybody works, but when we work in Krishna consciousness, that is the art, and that art we have to learn. काम तो सब करते हैं ना, बट हम जब भी गौड़ीय वैष्णवा काम करता है, जब वैष्णव का भक्त काम करता है, वो अलग कॉन्शियसनेस में करता है. वो आर्ट है, वो सीखना पड़ता है. काम तो सेम ही है, बट व्हाट हैपेंस, द कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट, द चेतना इज डिफरेंट. हमें किसके लिए काम करना है? भगवान के लिए काम करना है. बट हम डे टू डे लाइफ में क्या करेंगे? फिर कैसे करेंगे? हाउ डू वी डू वर्क? हम तो क्षत्रिय है नहीं, हमने तो कोई वॉर नहीं करना है. सो व्हाट डज दिस मीन? हाँ, हमेशा भगवान के बारे में सोचते हुए काम करना है. सो अगर आप गृहिणी हैं, अगर इफ़ यू आर अ मदर विथ यंग किड्स, तो वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर द किड्स, यू आर गोइंग टू रेज द इन डिवोशनल सर्विस. आप अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताएंगे, कृष्ण के बारे में बताएंगे. ऐसे. सो इफ़ यू आर कुकिंग, देन यू आर कुकिंग फॉर द लॉर्ड. ऐसे. सो वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू आर वर्किंग, इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस, तो हम ऑफिस में काम करके सबसे पहला जाके क्या करेंगे? भगवान, आज मैं जो भी कर रहा हूँ कंप्यूटर में लॉग इन करने के पहले ही कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू डू, इट इज़ फॉर योर प्लेजर. अच्छा हुआ रिजल्ट आपको, बुरा हुआ फिर भी आपको, बट आई एम गोइंग टू गिव माई बेस्ट. सो दिस इज कॉल्ड वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. इट इज़ अ आर्ट, वी हैव टू लर्न इट एवरी डे, डे बाय डे. हम भूल जाएंगे, नहीं तो भूलते रहेंगे. ऐसा है. सो दैट इज व्हाट इट इज सेड हियर. लेट्स रीड द परपोर्ट प्लीज. Since time immemorial, each living entity accumulated the various reactions of his good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of the Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Shri Krishna in all respects and become liberated from the chain victimization of action
and reaction birth after birth. Arjuna is therefore advised to act in Krishna consciousness, the purifying process of resultant action. So what are the points that Srila Prabhupada is telling here? कोई points बताएंगे इसमें से? What point is Srila Prabhupada trying to explain? क्या बोल रहे हैं? अच्छा इसके अंदर फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं? Since the time soul has been traveling, it says it has accumulated good and bad karma. हाँ कि जो आत्मा है अनेक जन्मों जन्मों से अलग अलग शरीर में आते जा रहा है ना, हर शरीर में जब भी जाता है तभी कर्म इकट्ठा कर रहा है, तो अभी बैकलॉग रेडी हो गया है ना। कर्म करते 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 करते, माता जी को चेयर चाहिए तो चेयर पे बैठना। हाँ 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 ठीक है, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। सो या सो हैज accumulated the various reactions of good and bad work, है ना। दैट्स व्हाट वी आर, हमारे बारे में बात चल रही है यहाँ पे कि हमने अनेक शरीर करके आ गए हैं, एंड आफ्टर वेरियस बर्थ्स वी हैव कलेक्टेड, वी हैव कम हियर। सो समटाइम्स गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ, समटाइम्स आर हैपनिंग इन आवर लाइफ, ड्यू टू विच why are good and bad things are happening? How are they happening? Based on our previous karma, maybe from this life and many of from the previous lives, है ना। ऐसे बैगेज, परफेक्ट हो जी, बैगेज। बोलते खाली हाथ आए थे, खाली हाथ एक्चुअली आते नहीं ना, इनविजिबल बैगेज होता है बहुत बड़ा। वो सेंटा क्लॉज का कैसा होता है पोता, हमारा एक्चुअली बहुत बड़ा पोता होता है। ओके गुड। सो क्या बोल रहे प्रभुपाद जी नाउ? As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. तो आत्मा है, आत्मा तो अमर है, बट आत्मा जिस शरीर में है, एक बार शरीर में प्रवेश करते ही भूल जाते हैं भगवान को, इग्नोरेंट बन जाते हैं, फिर काम करने में लग जाते हैं, फिर इकट्ठा करने में लग जाते हैं। सो व्हाट हैपेंस? वंस इग्नोरेंस कैन बी रिमूव्ड बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता। सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू रीड द स्क्रिप्चर्स, एज सनातनीज वी हैव टू रीड अवर स्क्रिप्चर्स, एंड इन स्क्रिप्चर्स there are अनेक Vedas, there are अनेक Upanishads, but the best of it is Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. When we read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, it is the essence of all the scriptures. My son Siddhant recently bought रूह अफ़ज़ा। इतना सा दूध में डालो, पूरा दूध, एसेंस है ना, एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, पावरफुल है वो। इतना एक चम्मच डालने से पूरा दूध में ऐसा खुशबू आ जाती है। ऐसे एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स मतलब पूरा निचोड़ लिया है, वो जो फूल की पंखुड़ियों को पूरा निचोड़ के उसका रस निकाला है। तो भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम सारे वेद शास्त्र सबका निचोड़ है। और सबका निचोड़ क्या है भगवद गीता में? भगवान कृष्ण को समर्पण करेंगे तो ये जीवन मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलेंगे। ये इन शॉर्ट उसका पूरा एसेंस है। ऐसे सो इट इज अ आर्ट टू बी लर्न। सो अर्जुना इज देयर फॉर, एंड क्या बोलते हैं, बिकम लिबरेटेड फ्रॉम द चेन विक्टिमाइजेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, बर्थ आफ्टर बर्थ। प्रभुपाद यूजेस हिज वर्ड सो एप्टली, चेन्ड विक्टिम। ऐसा विक्टिम नहीं बोला, चेन्ड। चेन्ड मतलब क्या? हाँ वो भी चेन है भी, हाँ फ्रॉम द चेन। एक चेन, एक साइकिल है, और दूसरा चेन है वो हथकड़ी भी लगाई है। हम जेल में है ना, हमको हथकड़ी दिख नहीं रही है अभी। किसी किसी को सोने की हथकड़ी लगाई है, तोते को सोने के पिंजरे में रखा है, बट पिंजरा तो पिंजरा ही है ना। ये चेन रिएक्शन है कि हर बार हम आ रहे हैं। हाँ, इन दिस पर्टिकुलर इट इज अ साइकिल। बार अपने एक्शन से कोई ना कोई रिएक्शन तो क्रिएट करते हैं, और वो कर्म बार बार बनाते रहते हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। अगर लिबरेशन चाहिए, इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, व्हाट डू वी वांट टू डू? वी फर्स्ट वांट टू एग्जॉस्ट अवर कर्मा। हमें जीरो करना है ना, गुड एंड बैड दोनों को जीरो करना है। तो जीरो कैसे करेंगे? चुपचाप एक कोने में बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है ऐसे? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। आत्मा तो चंचल है, मन भी चंचल है। ऐसे शांत बैठ के कोई बोलेगा मेडिटेशन करो, 1 घंटा करेंगे, 2 घंटा करेंगे, फिर क्या? तो नहीं होगा। सो व्हाट वी हैव टू डू? बुद्धि योगा। बुद्धि योगा इज एन आर्ट ऑफ ऑल द वर्क।
सो हम मेडिटेशन वाले नहीं है, हमको मेडिटेशन नहीं होगा हमसे, नॉर हम कर्म योगा करेंगे, उसमें भी फंस जाएंगे। कर्म करेंगे, काम करेंगे, फिर उसको अर्पण नहीं करेंगे, तो हमें सकाम कर्म भी नहीं करना है। सकाम कर्म इज कर्म करते बट फल की अपेक्षा करते हैं। देन व्हाट विल हैपन, फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के। बहुत बड़ा डोनेशन दे दिया किसी को और उसको बोल दिया कि भाई मेरा नाम ऊपर छपना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, तो क्या हो गया, कर्म तो किया, फिर उसका फल भी मिलेगा। फल के लिए वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे वाह वाह होगी ना फिर से, तो फिर वापस आना पड़ेगा ना वो वाह वाह रिसीव करने के लिए। ऐसे तो हमें क्या करना है, डोनेशन करना स्टॉप करना है, बराबर नहीं आश्रय नहीं, डोनेशन करते रहना चाहिए, बट भगवान को सब अर्पित, भगवान आप ही का है, आप ही को हम वापस दे रहे हैं, है ना, ऐसे कह। हाँ, गुप्तदान नहीं, गुप्तदान फिर भी, गुप्तदान में भी लोगों को बहुत वो होता है, प्राइड आ जाता है कहीं पे, मैंने मेरा नाम किसी को नहीं बताया, फिर किसी को तो हम बता देते, मैंने दिया था बट किसी को नहीं बताया, वो एक को बताने से सारा गड़बड़ हो जाता है फिर। तो गुप्तदान अच्छा है, बट फिर भी वो थोड़ा सा प्राइड आ जाता है देख देख के कि मैंने कुछ भी नहीं किया, कितना सिंपल हूँ मैं, सफ़ेद कपड़े पहन के आता हूँ, ऐसे। तो गुप्तदान करके वो नहीं होगा। हमें माइंड में कृष्णा कॉन्शियसनेस कंटिन्यूसली होना चाहिए। दैट इज द ओनली वे यू कैन बी फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शंस, अदरवाइज रिएक्शन से फ्री नहीं होगा, ऐसे। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस, some important points. So those who are making notes in this purport, Krishna consciousness is the purifying process of resultant action. Arjun is told that to avoid reaction he need not renounce work but work in right consciousness. अर्जुन मना कर रहा है फाइट करने से और कृष्ण बोल रहे नहीं भाई मना ऐसे नहीं चलेगा, अगर इफ यू डोंट डू वॉट एवर इज योर ड्यूटी देन टू यू विल गेट अ बैड रिएक्शन, तो यू हैव टू फाइट, ऐसे। So how to remove ignorance? By reading. How to remove ignorance मतलब कि how to sharpen our intelligence? मन बुद्धि अहंकार है ना, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार हमारे साथ अपने अगले शरीर में जाएगा आत्मा के साथ, तो बुद्धि को हमें तेज करना है। हाउ टू मेक द बुद्धि इंटेलिजेंट? बाय रीडिंग शास्त्रास, बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ द शास्त्रास, बाय अंडरस्टैंडिंग द शास्त्रास अंडर अ डिसिप्लिक सक्सेशन, अंडर अ बोनाफाइड डिसिप्लिक सक्सेशन। गुरु शिष्य परंपरा में सीखना है, हमें किसी से भी भगवत गीता नहीं सीखनी है, हमें गुरु शिष्य परंपरा में भगवत गीता सीखनी है। जैसे हम बच्चों को अगर बच्चों को सर्जन बनाना है तो हम प्रॉपर एक यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में टॉप क्लास, इसमें हम रिसर्च करके भेजते हैं ना कि पिछले 150 साल से कॉलेज है और 101 जबरदस्त सर्जन निकले वहाँ से, तो हमारा बेटा भी सर्जन बनेगा, है ना। तो हम सारा रिसर्च करते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें परंपरा से वो एजुकेशन सिस्टम चलते आ रहा है, उनके पास करेक्ट प्रोसेस है, कैसे करना है, कितना प्रैक्टिकल करना है, कितना थियरी करना है, कब एग्ज़ाम लेनी है, कब वाइवा होना है, हाँ, और फिर कैसे सपोर्ट देना है लास्ट के 1 या 2 ईयर में, प्लेसमेंट्स होना है, सब होना है। दैट कैन बी ओनली बी डन अंडर अ बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन। कोई अकेला अगर कोई साइड में बैठा है कि हमारे घर में भी, हम भी डॉक्टर हमारे पिताजी से सीखे हैं, आप आओ आपके बच्चे को भेजो, हम सिखा देंगे घर में, आप भेजेंगे क्या? नहीं ना, नहीं भेजना भी नहीं चाहिए, माइंड बोले भी फिर भी नहीं भेजना चाहिए, हमें प्रॉपर इंस्टीट्यूशन से जाना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई बाबा बाहर भगवत गीता के बारे में ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, तो हमें, अगर उनका गुरु नहीं है, उनके गुरु के गुरु परंपरा नहीं है, तो हम नहीं सीख सकते। So that is why यहाँ पे when you will see it is important to read Bhagavad Gita under a bona fide sampradaya, and that is what we are doing. We belong to Gaudiya Vaishnava Sampradaya. Gaudiya Vaishnava. Okay. So that's it. So let's move on to the next one. 51. Alright, I got that tune. So we will read this one also, and you can repeat after me. Reading from Bhagavad Gita, chapter 2, verse number 51. कर्मजां बुद्धियुक्ता हि
फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम्. So let's read the translation, Namita. By thus engaging in devotional service to the Lord, great sages or devotees free themselves from the results of birth in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries by going back to Godhead. तो क्या लिखा है यहाँ पे? कर्मजम बुद्धि युक्ता ही. बुद्धि युक्ता मतलब क्या? बीइंग एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस. बुद्धि से भक्ति करनी है ऐसे. फलम त्यक्त्वा मनीषिणः. फलम मतलब रिजल्ट्स, त्यक्ता मतलब गिविंग अप. मनीषिणः ग्रेट सेजेस. तो व्हाट इज हैपनिंग हियर? नाउ कृष्णा इज गिविंग एग्जाम्पल टू अर्जुन कि इतने सारे संत महात्मा है, वो भी काम करते हैं बट फल की अपेक्षा कोई नहीं करता. फल अर्पण कर देते. किसको? मुकुंदा को, भगवान को. मुकुंदा मतलब कौन? कृष्ण, गोविंद. उनको अर्पण कर देते. और क्या होता है ऐसे करने से? जन्म बंध विनिर्मुक्ता. जन्म बंध, बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ, मुक्त. इससे मुक्त हो जाएंगे ऐसा करने से. कौन बोल रहे हैं? किसको? कृष्णा बोल रहे हैं अर्जुन को. और कृष्ण हमें भी बोल रहे हैं. 5000 साल पहले कृष्ण को पता था हम भी बैठेंगे यहाँ पे और हम भी पढ़ेंगे. तो पदम गच्छन्ति अनामयम. पदम पोजीशन, गच्छन्ति दे रीच, अनामयम विदाउट मिजरीज. सो अनामयम इज अ प्लेस like Vaikuntha. Kuntha means anxiety. Vaikuntha means a place where there is no anxiety. जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसा नहीं है. वैकुंठ लोक में हमें जाना है. तो अगर हम काम करेंगे बिना फल की अपेक्षा किए हुए, बट बिना फल की अपेक्षा करके इतना ही नहीं रुकना है. बिना फल की अपेक्षा करते हुए सारे फल भगवान को अर्पण भी करना है, गोविंद को अर्पण करना है. अगर हम ऐसे करते हैं कंटिन्यूसली, देन we will become free from the cycle of birth, disease, old age and death, beyond miseries. हम वैकुंठ लोक पहुंच जाएंगे, place beyond all miseries. कृष्ण लोक भी पहुंच जाएंगे by going back to Godhead. प्रभुपाद here is very clear कि किसी को लगता है कि मुक्त होना मतलब कहीं हम लाइट वाइट में घुस जाएंगे, किधर में ऐसा ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाएंगे, हम किसी में मिक्स हो जाएंगे. ऐसा नहीं. प्रभुपाद बोल रहे हैं यहाँ पे बाय गोइंग बैक टू गॉडेड, हम भगवान के पास जाएंगे, कृष्ण लोक में जाएंगे ऐसे. और लेट्स रीड दिस प्लीज, द purport. The liberated living entities belong to that place where there are no material miseries. The Bhagavatam 10th canto 14th chapter 58 verse says, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लावम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुद्धिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम. बोलते पदम पदम यद विपदाम न तेषाम. लास्ट में. तो लेट अस रीड दिस. यस. For one who has accepted the bowl of the lotus feet of the Lord, who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda, or the giver of Mukti, the ocean of the material world is like the water contained in a calf's footprint. Param Padam, or the place where there are no material miseries, or Vaikuntha is his goal, not the place where there is danger in every step of life. थैंक यू. मुरारे है. मुरारी कौन है? कृष्ण है. ये कहाँ से बताया जा रहा है अभी? भागवत में, श्रीमद् भागवतम में कैंटो 10 वर्स चैप्टर 14 एंड वर्स नंबर 58. तो शिला प्रभुपाद नाउ इज गिविंग, भगवत गीता में ही है हम, बट शिला प्रभुपाद इज गिविंग अ एक्सपर्ट ए फ्रॉम कैंटो नंबर 10. उनको पता है कि हम जाएंगे नहीं कैंटो 10. एक कैंटो पढ़ने के लिए 1 साल लगता है. ये 10वां कैंटो है. अगर हम आज चालू करेंगे तो 10वां कैंटो पे 10 साल में पहुंचेंगे, अगर हम काम करते करते पढ़ेंगे तो ऐसे. तो प्रभुपाद जी को पता है. इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड भगवद गीता रिटन बाय द राइट सोर्स, बाय अ राइट पर्सन. बिकॉज व्हेन यू रीड भगवद गीता रिटन बाय अ सेंट लाइक शिला प्रभुपाद,
देन यू गेट द क्रक्स ऑफ ऑल नॉलेज। सारी जगह से प्रभुपाद जी चुन चुन के लेके आके वर्स बताते, एक्सप्लेन करते, फिर समझना इजी हो जाता है फिर। तो अभी प्रभुपाद जी क्या बोल रहे, कृष्ण ने तो बता दिया अर्जुन को कि ओके इफ़ यू डू दिस, अगर आप निष्काम कर्म करेंगे, अगर आप अपने सारे फल मुझे त्याग करेंगे, तो आप जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे। बट नाउ प्रभुपाद हियर ही इज ऑल्सो गिविंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कि कृष्ण को, और भागवतम में सुखदेव गोस्वामी ने क्या बताया है महाराज परीक्षित को, ये भी बताया महात्पदम पुण्य यशो मुरारे बोल रहे। सो दोज हु हैव एक्सेप्टेड द बोट ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड विल बी, उनके लिए क्या होगा, जब भी हम भक्ति करते तो सारे दुख हमारे बंद हो जाते हैं? नहीं, बंद नहीं होते, दुख होते। बट क्या लिखा है यहाँ पे, दुख छोटे हो जाते हैं। जो ये संसार का महाभव सागर है, इतना बड़ा ओशन है, वो छोटा सा हो जाता है। कितना छोटा होता है? का फुटप्रिंट। कहाँ लिखा है? पाद पल्लव प्लावम। गाय का बछड़ा होता है ना, उसके फुटप्रिंट इतना छोटा हो जाता है। वत्सपदम, यहाँ पे लिखा है वत्सपदम, कि गाय का बच्चा है, उसके उतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। ऐसे अगर भक्ति के बिना हम अपना डे टू डे एक्टिविटीज करेंगे, तो बैलगाड़ी में एक ऐसा गड्ढा, ऐसे रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे 1000 गड्ढे हैं, तो बैलगाड़ी में जाएंगे तो कैसा लगेगा, एक एक गड्ढा फील होगा, ठक ठक ठक, है ना। बट भक्ति करते तो क्या होगा, वही रोड है, इतने ही गड्ढे हैं, बट हम मर्सिडीज में जा रहे हैं। मेरे लिए मर्सिडीज ही बहुत बड़ी गाड़ी है, आपके लिए कोई बड़ी होगी तो मुझे बताना, मैं बोलता हूँ। मर्सिडीज में जा रहे हैं, उसमें शॉक अब्सर बहुत ज़बरदस्त है, तो हल्के हल्के झटके लग रहे हैं, ज़्यादा जोर से नहीं लग रहे, हल्के हल्के लग रहे हैं। डिवोशनल प्रैक्टिस विल help you with that. Okay, all right, let's continue please. Owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent persons try to adjust the situation by fruitive activities, thinking that the resultant actions will make them happy. They do not know that no kind of material body anywhere within the universe can give life without miseries. The miseries of life, namely birth, death, old age, and diseases, are present everywhere within the material world. But one who understands his real constitutional position as the eternal servitor of the Lord, and thus knows the position of the personality of Godhead, engages himself in the transcendental loving service of the Lord. Consequently, he becomes qualified to enter into the Vaikuntha planet, where there is neither material, miserable life, nor the influence of time and death. To know one's constitutional position means to know also the sublime position of the Lord. One who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level is to be understood to be in darkness and therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. He becomes the Lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death. But one who understanding that his position is to serve, transfers himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuntha Lok. Service for the cause of the Lord is called Karma Yoga or Buddhi Yoga, or in plain words, devotional service to the Lord. Thank you. Very nicely read. Good. So there are 7 types of problems every human being faces. The first 4 are easy. बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज, डेथ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, सबको फिक्स है, कोई इससे छूट नहीं सकता। हाँ, और बाकी 3 7 है टोटल, बाकी 3 कौन बताएगा? हाँ? आध्यात्मिक, आदि दैविक एंड आदि भौतिक। आध्यात्मिक मतलब मिजरीज कॉज्ड बाय वन्स ओन बॉडी एंड माइंड। हमारा ही कभी कभी माइंड हमें चकमा देते रहता है, सोने ही नहीं देता है, माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, स्लीपिंग पिल्स खाने पड़ते बहुत लोगों को, नींद नहीं आती। तो वन्स ओन बॉडी एंड माइंड, ये फिक्स है, ये शास्त्र में दिया है। ओके, आध्यात्मिक, फिर आदि दैविक, दैव, नेचर, मिजरीज कॉज बाय नेचर। अभी क्या है, रशिया में सुनामी आया था, अर्थक्वेक आया, रशिया, जापान, हाँ
कितना नुकसान हो गया, बहुत कुछ हो गया, कंट्रोल में है हमारे। वो सायरन लगाया है वहाँ पे, तो सायरन क्या करता है, अर्थक्वेक आने के पहले आवाज़ देता है, बट क्या वो अर्थक्वेक को रोक सकता है? नहीं रोक सकता, फिक्स्ड है। दैव हमारे हाथ में नहीं है। तो आदि आध्यात्मिक, आदि दैविक एंड आदि भौतिक, मिजरी इज कॉज बाय अदर लिविंग एंटिटीज। हमारे आजू बाजू के लोग हमें तकलीफ देते हैं, कभी घर वाले होते हैं, कभी बाहर वाले होते हैं, कभी बॉस होता है ऑफिस में, है ना, कभी बाजू के घर वाला कुत्ता भी होता है, भौंकते रहता है कंटिन्यूस। हम कुछ नहीं कर सकते, हमको सहना पड़ता है ऐसे। तो ऐसे 7 चीज़ें हैं। तो इफ़ यू वांट टू बिकम फ्री ऑफ दीज देन वी हैव टू, अच्छा 2 जगह पे लोग जा रहे हैं, मैं समझ में नहीं आ रहा था, इधर गौर नीता है तो भूल गया मैं। यस, ओके। Okay, yeah. So Prabhupada is giving very nicely is explaining that out of ignorance, less intelligent person try to adjust to the situation by fruitive activities, thinking that the resultant action will make them happy. तो कभी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आते तो हम क्या करते हैं, फिर हम फिर दोस्तों की मदद लेते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जैक लगाते हैं, बट फिर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता। कभी डिजीज़ आ जाता है तो हमारे बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इंडिया जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, बट होता नहीं, कभी कभी हम ठीक नहीं होते। क्यों नहीं ठीक होते? हमारे पिछले कर्म है ना, तो कर्म तो भुगतने पड़ेंगे। तो डॉक्टर उसमें फिर वो मेडिसिन काम नहीं करता। सेम मेडिसिन जो दूसरों के ऊपर काम किया है, वो कितना भी अच्छा डॉक्टर क्यों ना हो, उसने 1000 लोगों को ठीक किया, लेकिन हम जब भी जाते तो हमारे को नहीं ठीक कर पाता वो, क्योंकि हमारे कर्म ठीक नहीं हुए। फिर हम 5-6 महीना, 1 साल ऐसे अनेक टाइम तक भुगतते रहते हैं। फिर कोई दूसरे दिन फिर बोलता था कि इस डॉक्टर के पास जाओ, और हम उसके पास जाते और ठीक हो जाते हम। फिर हमें अच्छा लगता कि डॉक्टर बहुत होशियार है। नहीं, हमारे कर्म खत्म हो गए, वो रिजल्ट खत्म हो गया, अभी नया आएगा आगे जाके। ऐसे ये जब भी हम समझेंगे तो हमारे जीवन बहुत आसान हो जाएगा। मेरे केस में भी रिसेंटली हुआ था ना। आई रियलाइज कि ओके, कि ये पेन है, ये मुझे सहना ही पड़ेगा। अलग अलग पोजीशन में सो रहा हूँ, यहाँ पे किडनी दुख रही है, इधर सो रहा हूँ, ऐसे खड़े रह के देख रहा हूँ, ऐसे करके स्ट्रेच करके देख रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। 6-7-8 घंटे कंटिन्यूस पेन के बाद फिर धीरे धीरे बंद हो गया, फिर आता है, फिर जाता है। अभी काफ़ी टाइम से है ही नहीं, तो आई एम थिंकिंग कि आई एम क्योर्ड, बट आई एम थैंकफुल टू द लॉर्ड कि भगवान ने बड़ा डोज था वो शॉर्ट में दे दिया। सो दैट इज़ हाउ वी हैव बीन ट्रेन टू थिंक दैट वे, इट लेसन्स द पेन। ओके, व्हाई मी हम नहीं पूछेंगे भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसे हो गया, नहीं, पता है हम पापी लोग हैं, तो बट अभी भगवान के शरण में आ गए हैं, तो भगवान ने शॉर्ट में डोज दिया। पैर कटने वाला था, उंगली कट के काम निकल गया है। दैट इज व्हाट शुड बी द थिंग। ऑलराइट, एनीबडी एल्स हैज एनी पॉइंट टू मेक हियर? बट वन हु अंडरस्टैंडिंग दैट हिज पोजिशन इज टू सर्व। व्हाट इज आवर पोजिशन? कृष्ण इज विभु, हम है अणु। भगवान है, हम कौन है? हम भगवान के दास हैं। जब भी हम ये ध्यान रखेंगे कि हम दास है और हमारा काम भगवान की सेवा करना है, और भगवान की सेवा नहीं, भगवान के भक्तों की पहले सेवा करनी है। सो दासानु दास, भगवान के भक्तों के दास, ऐसे। तो जब भी हम वो मूड में आएंगे तो हमारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा भक्तों की सेवा करने में। So, but transfers himself to the service of the Lord, at once becomes eligible for Vaikuntha Loka। फिर आप देखेंगे आपके जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन आ जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। भक्ति में, भक्ति मार्ग में मज़ा अलग है, बहुत अच्छा लगेगा। Let's move on to the next one, 52। यदा यदा ते मोहा कलिलाम, यदा ते मोहा बुद्धिर्व्यतितरिष्यति,
तदा गन्तासि निर्वेदाम् श्रोताव्यास्य श्रुतस्य च 52 yes. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion. Okay. Yeah, let's read the first paragraph of the purport. There are many good examples in the lives of great devotees of the Lord, of those who became indifferent to the rituals of the Vedas simply by devotional service to the Lord. When a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities. Even though an experienced Brahmin, Sri Madhvendra Puri, a great devotee and acharya in the line of devotees says, Okay, let's hold on for a minute here. So persons in full Krishna consciousness transcend the limit of Shabda Brahman. Shabda Brahman matlab the flowery language of Vedas. So Prabhupada says flowery language of Vedas. कितने वेदास हैं? 4 है. क्या नाम है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. 4 वेद. So Vedas promote Karma Kanda section. Vedas are primarily doing Karma Kanda section. I know of my friends. They don't follow any rules and regulations. कोई उपवास नहीं करते, कुछ भी नहीं करते. Okay, there is a family that I know of. Very good friend of mine from my childhood times. But they are very well to do. बहुत अच्छा है सब कुछ. बट कोई भी भक्ति और ऐसा कुछ भी भगवान से कुछ लेना देना नहीं है. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं करते. तो रिसेंटली अभी थोड़ा उनके जीवन में कभी सुख कभी दुख आते ही रहेगा ना, बेस्ड ऑन पास्ट कर्मास. अभी तो पढ़ा है दो श्लोका पहले 2.50 में. तो ऐसे जीवन में कुछ हो गया तो किसी ने बोला फिर उनको कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ और देखो. तो एस्ट्रोलॉजर ने कुछ बोला, तो एस्ट्रोलॉजर ने देखा और बोला कि आपको दिन में एक बार उपवास करना पड़ेगा, हफ्ते में एक बार, और उनको किसी एक पूजा करने को बोल दिया है. ठीक है, तो वो ब्राह्मण से अभी पूजा कराया है और अभी धीरे धीरे वो लोग हफ्ते में एक बार अभी उपवास करते हैं. किसी एक दिन पे उपवास करते हैं. ठीक है, सोमवार को उपवास करते हैं, लेकिन बाकी दिन मीट वगैरह सब कुछ खाते हैं, बट सोमवार को उपवास करते हैं. Is it a good thing or a bad thing? तो गुड और बैड. अच्छा, एक किसी बंदे को है ना 60% मार्क्स मिला है. गुड है कि बैड है? गुड है कि बैड है, वो आंसर इज रिलेटिव. इट इज रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक पर्सन. अगर वो स्टूडेंट पहले 45% मिलता था उसको और अभी 60% मिला तो गुड है. बट जिसको 80% मिलता था पहले और 60 पे आया तो उसके लिए बैड है. तो ये लोग अभी कोई भी रूल्स रेगुलेशन नहीं करते थे, अभी सोमवार का उपवास करने लग गए, बट बाकी 5 दिन खाते हैं सब कुछ. पर प्रभु जिसकी रीजनिंग तो अलग है ना. हाँ, तो वो हाँ, किस पर्पस से कर रहे हैं. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ. तो ये गुड है उनके लिए. तो वेदास क्या है? वेदास विल गिव यू कर्मकांड सेक्शन. अगर आपको पुत्र चाहिए तो पुत्र कामिष्टि यज्ञ करें. अगर आपको कोई ग्रह सता रहा है तो उस ग्रह के लिए आप पूजा विधि कराएं. उस एक ग्रह के एक सोमवार को, सपोज कुछ है प्रॉब्लम, तो सोमवार को आप पूजा ये कीजिए, फास्टिंग कीजिए, एंड देन थिंग्स विल गो गुड इन योर लाइफ. सो वेदास क्या करते हैं? वेदास कर्मकांड सेक्शन में प्रमोट करते हैं. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. सो व्हाट एवर रीजंस दे हैव, कुछ नहीं कर रहे थे पहले, अभी थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गया है ना. बट इज वेदास द टॉप मोस्ट? जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा है ऑलरेडी, जो 95% पे है, वो 60% पे तो उसको मजा नहीं आएगा. उनके लिए वेदास अच्छा नहीं लगेगा उनको. सो देयर आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल. सेक्शंस मतलब डिफरेंट कॉन्शियसनेस ऑफ पीपल. तो ऐसे लोग जिनके लिए कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन मानने से मना करते हैं,
वो वेदास के लिए उनको फिर इम्पोर्टेंट है। फिर वो पंडित जी के पास जाएंगे, पंडित जी बोलेंगे नहीं भाई आप ऐसा करना, अभी नवरात्रि आ रहे हैं तो आप उपवास करना, तो कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आएगा ना, है ना। हाँ, कुछ तो बेस होगा। धीरे धीरे ऐसे अनेक जन्म करने के बाद वो धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करेगा। फिर एक दिन एकादशी पे आएगा ऐसे, फिर कभी भगवत गीता पढ़ेगा तो ऐसे करेगा। तो what Srila Prabhupada is telling here that one must be disinterested। ये जो लिखा है ना, क्या लिखा है, किधर गया, dense कलीनाम, dense forest of so Prabhupada is telling here कि ये वेदास के जो कर्म कांड सेक्शन से हमको ऊपर उठना है ना। वो जो मेंटालिटी है ना हमारी कि अभी उनके लिए अच्छी है, जिसके फैमिली के बारे में बात करा था वो अच्छे कुछ नहीं कर रहे थे, बट अभी एक कोकोनट लेके जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर में कि प्लीज दिस इज फॉर यू माय लॉर्ड, टेक दिस एंड प्लीज गिव मी प्रमोशन एट वर्क। ओके, कुछ तो आ गया उसके जीवन में, रेगुलेशन आ गया, उसको पता है कि मेरे से भी ऊपर कोई है। पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं थे, बोले सब हम हमारे दम पे है, हमारा सब कुछ अच्छा है, बाप दादा की जायदाद है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी कुछ जीवन में प्रॉब्लम आ गया तो अभी एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, अभी किसी को तो फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो इट इज देयर स्टार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इन द स्पिरिचुअल साइकिल में। अभी दूसरी तीसरी कक्षा में है, धीरे धीरे फिर आगे जाएंगे, अनेक अलग अलग देवताओं के पास जाके फिर कहीं उनको पता चलेगा कि टॉप मोस्ट कौन है, फिर धीरे धीरे उस एंगल से बढ़ेगा। सो अच्छा है कि बुरा है, ये इंडिविजुअल लेवल्स पे है, हम जज नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ बता रहे कि इसमें क्या लिखा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कृष्ण, ये कर्म कांड के ऊपर निकल, हाँ, सो कम आउट ऑफ गेट सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है ना कि एक हाथ ले दूसरे हाथ ले, यू कम आउट ऑफ दैट मेंटेलिटी, no more sense gratification। okay, so you must get disinterested, so which is this sense gratification is promoted in वैदिक कर्म कांड। जब भी हम नॉर्मल पंडित को बुलाते हैं तो हमें क्या देता है वो, आशीर्वाद की धनम देही, पुत्र देही, गाड़ी देही, बंगला देही, हम सब ये मांगते हैं ना कि भाई पंडित जी उसको ब्लेस करो मेरे बेटे को, है ना, ऐसे, या मेरे बच्चों को ऐसे। सो बट एनीबडी हु इज इन भक्ति मार्ग, उसको पता है ये आने के बाद बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले मेरे जीवन में ऐसे। तो दिस वर्स implies that अर्जुन शुड राइज above the calculation of happiness and misery and fight with बुद्धि fixed intelligence ऐसे। So what is the focus of learning? The learning is, यहाँ पे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का वो दिया है उन्होंने, of how he is one of the saints and how he is can you read this please? O my prayers 3 times a day, all glory to you. O bathing, I offer my obeisances unto you. O demigods, O forefathers, please excuse me for my inability to offer you my respects. Now wherever I sit, I can remember the great descendant of the Yadu dynasty, Krishna, the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. So Srila Madhvendra Puri is one of the saints in our Gaudiya Vaishnava Sampradaya, and Srila Madhvendra Puri is saying, is praying now कि जैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं ना, ब्राह्मणा तो 3 बार वो नहाएंगे ब्राह्मणा, फिर 3 बार गायत्री करेंगे, और फिर जैसे पूर्णिमा आती है और अमावस्या आती है तो हर अमावस्या में पितृतर्पण करते हैं बहुत लोग ऐसे। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए हमारे को, है? अगर हम भक्ति नहीं कर रहे तो हमें बाकी सब कुछ करना चाहिए, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे तो हम प्रॉब्लम में है फिर, ठीक है। सो वी हैव टू डू समथिंग। सो व्हाट माधवेंद्र पुरी इज सेइंग कि अब से मैं स्टॉप करता हूँ, ये मुझे ना 3 बार संध्या करना है, ना मुझे 3 बार नहाना है। क्यों? क्योंकि आई हैव डिवोटेड माई सेल्फ टू यदु डायनेस्टी के, यहाँ पे लिखा है ना, यादवा कुलोत्तमस्य, है ना, द टॉप मोस्ट डिसेंडेंट ऑफ द यदु डायनेस्टी हु इज नन अदर देन गोविंद लॉर्ड कृष्णा, कि मैंने कृष्णा को सब कुछ अर्पण कर दिया है, अभी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हमने हमारे अपने आप को कृष्णा को अगर समर्पण नहीं किया है तो हमें बाकी सब कुछ करना है, नहीं तो हम फंस जाएंगे ऐसे। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू डू दिस। All right, let's read the Vedic rites and The Vedic rites and rituals are imperative for neophytes.
comprehending all kinds of prayer 3 times a day, taking a bath early in the morning, offering respects to the forefathers, etc. But when one is fully in Krishna consciousness and is engaged in his transcendental loving service, one becomes indifferent to all these regulative principles because he has already attained perfection. If one can reach the platform of understanding by service to the Supreme Lord Krishna, he has no longer to execute different types of penances and sacrifices as recommended in the revealed scriptures. And similarly, if one has not understood that the purpose of Vedas is to reach Krishna and simply engages in the rituals, etc., then he is uselessly wasting time in such engagements. Person in Krishna consciousness transcends the limit of Shabda Brahma or the range of the Vedas and Upanishads. So Vedas give Karma Kanda knowledge, Upanishads give knowledge about how to obtain the Supreme, but Srimad Bhagavatam and other Bhagavad Gita will give you knowledge of devotional service and devotional practice. ऐसे. Okay. So Srila Prabhupada very clearly explains that the purpose of Vedas is to eventually reach Krishna. वेदा में जितना भी कर्मकांड के जितने भी पूजा विधि दिए है, जब भी कोई फॉलो करता है जन्म के बाद धीरे 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 करके एक जन्म में फिर वो लेवल पे आ जाता है कि बहुत हो गया, पुत्र दे, धनम दे, गाड़ी दे, अभी मेरा मन भर गया इससे, अभी मुझे आगे वाले स्टेप पे जाना है, मज़ा नहीं आ रहा है ज़िंदगी में। हाँ, क्योंकि अभी इतना सब कुछ भोग लिया है ना, अभी और क्या चाहिए, अभी मजा नहीं। फिर बोलते और क्या है, और क्या है, सच्चा आनंद कहाँ से आएगा, व्हाट इज द परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। फिर वो एक दिन ऐसे क्लास में आता है और उसको पता चल जाता है, यस दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, दिस इज व्हाट आई वांट, ये मैं ट्राई करके देखता हूँ। सो टुडे व्हेन वी हैव चैंटेड द हरे कृष्णा महामंत्र, दैट इज द बेस्ट वे टू कनेक्ट टू कृष्णा, that is the best and the most easiest way to connect to Krishna. All right. So what is the dense forest here? यहाँ पे लिखा है कर्मकांड सेक्शन इज कंपेयर टू द डेंस डार्क फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन। कर्मकांड में भूल भुलैया है, इतना चकाचौंध है उसमें कि बंदा भूल जाता है, वो सिर्फ मांगने में, बिजनेस करने में ही जाता है कि अगर मुझे ये मिला तो 11 ब्राह्मणों को खिलाऊंगा। That's called business. I scratch your back, you scratch my back. Business with various demigods. That's what we are doing in the Ishopanishad, and it was fun to explain this to the kids this morning, and they all agreed. Wow! Because when you basically go to Ganesh ji with a red color ka fool and a coconut, I did a lot of that. एग्जाम के पहले गणेश जी के मंदिर में माथा टेक के आगे जाता था। स्पेशली मैथ्स के एग्ज़ाम में 5 मिनट एक्स्ट्रा स्पेंड करता था। फूलों की हार भी, एक पप्पा से पैसे लेके फूलों का हार भी देता था कि पास होना चाहिए मैं आज। मैथ्स अच्छा नहीं लगता था। हैं? नहीं, हम बॉम्बे में बोरीवली में रहते थे, वहाँ पे स्वयंभू गणेश है, स्वयंभू गणेश है। सो दीज डेमिगॉड्स आर वेरी वेरी पावरफुल with all due respect, and they have the power to fulfill all of your material desires. हाँ, वजीरा नाका, हाँ वजीरा नाका, वेरी नाइस, यस, बोरीवली में वजीरा नाका गणेश मंदिर। So the demigods can fulfill your desires, but then material desires only they can fulfill. Go and ask Ganesh ji, मुझे मुक्ति दे दो, से भाई वो नहीं मैं कर सकता, रॉन्ग नंबर, दैट आई कैन, इट इज बियॉन्ड माई जुरिस्डिक्शन, यस बट आई कैन गाइड यू। देन व्हेन यू प्रे टू डेमिगॉड्स कि आपको कहाँ से आनंद आ रहा है, आपके मास्टर कौन है, उनके पास मुझे भेजो, देन दे विल से अरे ये तो निरला आया है आज, ये कौन आ गया है, ऐसे है। सो इफ यू एवर वांट टू प्रे टू डेमिगॉड्स देन दिस इज व्हाट यू शुड प्रे, हाउ डू आई अटेन लॉर्ड कृष्णा। All right, next to the next one, 53. श्रुति विप्रातिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधाव अचल बुद्धिस्
तदा योगम अवाप्स्यसि. Yes. When your mind is no longer disturbed by the flowery language of the Vedas, and when it has remained fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. So now, logically, logically things are changing here. So from here on, now we are going to discuss the qualities of a sthita pragya, the symptoms of a sthita pragya. Sthita pragya is a person who is continuously acting in buddhi yoga. अनेक योगा है, कर्म योगा है, ज्ञान योगा है, अष्टांग योगा है. हम बुद्धि योगा पे फोकस कर रहे हैं. अष्टांग योगा मतलब मेडिटेशन है. ऐसे तो हम बुद्धि योगा पे कर रहे हैं. हम मेडिटेशन हम कर नहीं पाएंगे, तो बुद्धि योगा पे है. डिवोशनल सर्विस. So now it is said, when your mind is no longer disturbed by flowery language of Vedas and when it remains fixed in it, then you will have attained the divine consciousness. जब भी आप वेदास से ऊपर उठ जाएंगे, जब भी आपको कोई कर्मकांड, कोई भी पूजा वगैरह अट्रैक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान की भक्ति अट्रैक्ट करेंगी. ऐसा लगेगा सुबह कब हो रही है, मंगला मुहूर्त कब हो रहा है और कब मैं माला लेके बैठूं. ऐसा जब भी आपके जीवन में, आपके मन में जब भी ऐसी बात आएगी, तभी समझ लेना कि आप थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहे भक्ति योगा में. ओके, सो यस, लेट्स रीड. To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness. That is, one in full samadhi has realized Brahman, Paramatma and Bhagavan. Brahman, Paramatma and Bhagavan. The highest perfection of self-realization is to understand that one is eternally the servitor of Krishna and that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness. A Krishna conscious person or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas, nor be engaged in futile activities for promotion to the heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one comes directly into communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve results by such activities and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the orders of Krishna or his representative, the spiritual master. thank you. इधर गया वो. Promotion to the heavenly kingdom. तो करंटली पंडित जी से हम बात करेंगे किसी से, तो बोले पूजा करा लो, आपके लिए पूजा करा देते हैं, बहुत अच्छा होगा. तो क्या होगा पूजा करने से? अच्छा, अगर हम 151 ब्राह्मण को खिलाएंगे, भोग वगैरह करेंगे, तो देन वी विल गेट एलिजिबल टू गो टू इंद्रलोक, स्वर्गलोक में जाने का फिर बन जाएगा, क्योंकि वी विल हैव कलेक्टेड लॉट ऑफ पायटी. कभी कभी बहुत ज़्यादा पायटी करने से फिर ये धरती लोक पे हम मज़ा नहीं कर सकते. देन द फ्रूट्स ऑफ पायटी आर accumulated so much that you have to be upgraded to the स्वर्गलोका. स्वर्गलोका में जबरदस्त इंजॉयमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्वर्गलोका एंड दिस धरती लोक? इन स्वर्गलोक यू टेक बर्थ and then you take death. There is no disease and no old age in Swargalok, in the heavenly planets. Full enjoyment of full enjoyment. You cannot believe. It's given in Srimad Bhagavatam. Pura enjoyment, full. But basically you are exhausting your pious credits. जैसे ही pious credit खत्म हो जाएगा, फिर वापस आना पड़ेगा, ऐसे. Okay? So that is the beauty of it. So what it is said here, Srila Prabhupada explains that a Krishna consciousness person, and he says, he gives a synonym or unflinching devotee of the Lord. Unflinching devotee मतलब थोड़ा भी डगमग नहीं, थोड़ा भी माइंड में ऐसा नहीं आएगा कि चलो आज सोमवार है, आज मैं कहीं और जाके दूध चढ़ाऊंगा, नहीं, थोड़ा भी नहीं आएगा. वो एक इसमें ही गोविंद और गोविंद, दैट्स इट. अनफ्लिंचिंग डिवोटी, ऐसा शास्त्र बोल रहा है. Is not disturbed by the flowery language of Lord or be engaged in fruitive activities for promotion to heavenly kingdom. उसको कहीं पे भी इंटरेस्ट ही नहीं है. स्वर्ग भी जाने को उसको आप दोगे टिकट की, जाओ, नहीं मुझे नहीं जाना. That's it. मुझे गोविंद और कृष्ण, बस, that's it. He will take care of me. ऐसे.
दैट इज कॉल्ड अनफ्लिंचिंग. इन श्री ईशोपनिषद ऑल्सो वी वर रीडिंग एकात्मेन, सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस, कंप्लीट डिवोशन, फुल फेथ इन कृष्णा. ऐसे लोगों को बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ना फोरफादर्स के लिए तर्पण करने की जरूरत है, ना इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव सबके लिए यज्ञ करने की जरूरत है. कुछ भी जरूरत नहीं है. ऐसे in Krishna consciousness one comes directly in communion with Krishna, and thus all directions from Krishna may be understood in this transcendental state. ऐसे. So one has to only carry out orders of Krishna or is representative the spiritual master. तो कृष्णा हमें directly तो अर्जुन के सामने जैसे आए थे वैसे तो नहीं आ रहे, but Krishna has given this book Bhagavad Gita. So Krishna is present, he is giving instructions to us the way he gave to Arjun, but via Bhagavad Gita. इसलिए हमें भगवद गीता कंठस्थ याद हो जानी चाहिए, पढ़ के हमें उसका रस निचोड़ना चाहिए, and we have to slowly and steadily start implementing it in our lives. So focus of learning for 2.53, highest perfection of self realization implies to realize oneself as the eternal servitor of Krishna. हम कृष्णा के दास है, ये भूलना नहीं है, यही है. And one's only business is to discharge one's duty in Krishna consciousness. जो भी करेंगे सुबह से शाम 24 घंटे है, उसमें से 6-7 घंटे सोने में जा रहे हैं, उसमें तो कुछ हमारे हाथ में नहीं, एक बार सो गए तो सो गए. बट बाकी जो घंटे हैं 18 आवर्स फॉर एग्जाम्पल, दैट यू हैव टू फुल्ली प्लान प्रॉपरली. एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान्ड. ऐसे नहीं हवा का झोंका आ गया और कहीं हम CBD में घूमने चले गए, फिर वहाँ से मॉल में चले गए, मॉल में भी जा रहे हैं, यहाँ से झोंका आ गया तो शॉपिंग करने लेफ्ट में किसी इसमें चले गए. नहीं, ऐसा नहीं. दोज पीपल आर डिफरेंट. यू हैव टेकन अप टू द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस. सो योर माइंड हैज़ टू बी ड्रिवन बाय इंटेलिजेंस. कि यार मेरा 18 घंटा मैं कैसे स्पेंड करने वाला हूँ, कितना टाइम मैं फेसबुक करते रहूँगा. टाइम गया, फिर ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी हाथ से. एकाग्रता से भगवान के प्रति शरण जाना है, उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है. एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ यू मेक एफर्ट्स टू डू इट. सुबह अलार्म लगना चाहिए और रिपीट मोड में अलार्म होना चाहिए. 4:35 AM को उठने वाला जगाना चाहिए वो अलार्म. एंड दैट इज हाउ योर डे स्टार्ट. इफ यू स्टार्ट अर्ली देन द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म. जो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता वो भक्ति बहुत दूर है उससे. वो फिर तमोगुण में है. 8-8, 9-9 बजे उठना, उसके बाद अरे सूरज बाहर निकल गया, अभी आधी जिंदगी निकल गई, आधा दिन तो निकल गया, अभी क्या भक्ति करेंगे, अभी तो काम पे जाने का टाइम आ गया. सो एवरीबडी हु इज सीरियस इन भक्ति मस्ट गेट अप एट 4:30. अदरवाइज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम. फिर एक बार जन्म लेना पड़ेगा. जरूरी नहीं मेलबर्न में जन्म लेंगे, हैं? ईरान इराक में गया तो, चाइना में भगवान का तो नाम ही नहीं, कम्युनिस्ट. दिन भर काम करना है बस. अगर इसमें फंस गए तो अभी तो कितने लकी है, फ्राइडे इवनिंग को सब कुछ छोड़ के हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं सारे लोग. बट ये चांस, it is not guaranteed that you will get it again. So don't waste this chance. Be very, very careful in your choices. All right? Okay, so we will stop here at 2.53. Next time we will do 2.54. Janmashtami is coming up. Any questions before I conclude the class? Any questions? किसी को कोई क्वेश्चन है आज के क्लास से रिलेटेड, भगवद गीता से रिलेटेड? All right, we'll stop the class. Thank you. शिला प्रभुपाद. जन्माष्टमी 16 तारीख को है ना, 16 अगस्त. हमने हॉल बुक किया है. कितने लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है? क्योंकि मुझे